Hi everyone, welcome to your channel Law Digest. My name is Chetan and in this video we are going to study a very important topic which is partnership in quant section. So this video is going to be very helpful if you are preparing for CUET PG, PU LLB or for that matter any other law entrance examination wherever maths is being asked. So a brief about myself, I have done my Masters in Commerce from Delhi University. I have written various competitive examinations like CAT, UGC NET, SSC CGL and I have got good ranks in those exams. I have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. And if I talk about the course, so you can always visit the website. It is lawdigest.in. So on the website, you will get all the details about the different examinations, the courses, and what all we offer under the courses. Okay, like this CUET PG. So you get admission in a lot of universities through CUET PG. Prominent two are DU and BHU. Now, if I talk about this topic of partnership, so this is the question which was being asked from the topic of partnership in CUET PG 2023. So data about two people P and Q was given. So a partnership is very much based on the concept of ratio proportion. Okay, so you get a data about their investment or capital. You are given data about the time of investment, and you have to check their profit sharing ratio. This is the entire concept of partnership. So I will discuss similar question in today's video, and I have tried to take different types of questions so that you get a good idea about what type of questions can be asked. Okay, but see, this video is more to give you an idea. But if you go to the course में सब कुछ बहुत डिटेल में explained है, everything. And also in the course you will find that we have given questions, we have segregated the questions into easy, medium and hard level questions. Okay. Now we will look at question number 1. It says we will read line by line. Okay. A and B started a business in partnership investing rupees 20,000 and 15,000 respectively. There are two people A and B. उन्होंने business start किया और उन्होंने investment कितनी करी business में 20,000 and 15,000. So for example, I'll just write down whatever it is given in the question. So A started with the investment of 20,000. B started with the investment of 15,000. Okay, this is given to us. So basically I can say this is their capital. C means capital. Okay. Now after 6 months, C joined them with 20,000 rupees. तो 6 महीने के बाद C ने ज्वाइन करा with 20,000. Okay. What will be B's share in the total profit of 25,000 earned at the end of 2 years? 2 साल बाद उन्होंने 25,000 का प्रॉफिट कमाया. अब उसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि बी का शेयर कितना है. देखो इस 25,000 में तीनों का शेयर होगा, कुछ ना कुछ ए बी और सी तीनों का शेयर होगा, लेकिन वो शेयर बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रॉफिट का शेयर कितना होगा वो डिपेंड करता है आपने पैसा कितना लगाया है, दैट इज कैपिटल, एंड नंबर 2 कितने टाइम के लिए लगाया है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम. अब यही चीज में हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं. तो तीनों के लिए हम कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, तो यहां पे क्या गिवन है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000 अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस. तो अगर आप ध्यान से समझो, कैपिटल तो मैंने लिख दिया है, लेकिन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ध्यान से अगर आप सोचो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है. ए ने पूरे 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बी ने भी पूरे 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर बट सी जॉइंड लेटर. तो सी का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होएगा आप लोग मुझे बताओ. सी जॉइंड आफ्टर 6 months, so C's time of investment is 1.5 years. How much? 1.5 years. और अगर आप इसको मंथ्स में भी लिखना चाहो तो बेसिकली दिस इज 24 months एंड 18 months. ईयर्स में भी लिख सकते हैं, मंथ्स में भी लिख सकते हैं. देखो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन होता है कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट से, कैपिटल के रेशियो से मल्टीप्लाइड बाय टाइम के रेशियो से. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब टाइम का हमको रेशियो गिवन है, मतलब इसको आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ले सकते हो, बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एज यू विश, एज यू फील कंफर्टेबल. तो लाइक 20,000 इंटू 2 इज 40,000, 15,000 इंटू 2 इज 30,000 and 20,000 into 1.5 is 30,000.
तो ये रेशियो निकालनी है हमको, दिस इज बेसिकली रेशियो। तो रेशियो निकालनी होती है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:3। अब इस 4:3:3 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज इफ द बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, अगर बिजनेस को 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 4 रुपीज विल गो टू ए, 3 रुपीज विल गो टू बी एंड 3 रुपीज विल गो टू सी। ओके, सो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? यू कैन से सर बी का शेयर हो गया 3/10। 10 क्या है? 3 तो आपको पता है, बी का शेयर 3 यहां से आपको दिख रहा है। व्हाट इज 10? 10 सम हो गया 4 + 3 + 3 10, तो 3/10 हो गया आपका बी का शेयर, बी का शेयर। अब टोटल प्रॉफिट यहां पे था 25,000, तो बी का शेयर कितना होगा? नाउ आई थिंक एवरीबॉडी कैन आंसर मी। इट वुड बी 25,000 अपॉन 3/10, so this comes out to be 7,500 rupees. So the share of B is 7,500 rupees, which is ऑप्शन ए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि काफी ब्रेक डाउन करके मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस रीड द क्वेश्चन टुगेदर। इट सेज A invested 76,000 rupees in a business. After few months, B joined him with 57,000 rupees. Okay, after few months, but after how many months ये नहीं बताया। At the end of the year, after 1 year, the total profit was divided between them in 2:1 ratio. ये आपको गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है ना। तो हम आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, बी ने कितने मंथ्स बाद ज्वाइन करा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं 6, 8, 4 and 5. Now we will do very conventionally this question also. So we have two people over here, A and B. You are given A invested 76,000 rupees and B invested how much? 57,000 rupees. हमको गिवन है B ने ज्वाइन करा कुछ टाइम बाद, बट A invested for the entire year. A invested for the entire year, so I can write 12 months. But after how many months B joined, ये मुझे नहीं पता। लेट सपोज मैं अज्यूम करता हूं बी इन्वेस्टेड फॉर वाई मंथ्स, वाई मंथ्स के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया, बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइंड। तो हमें एक्चुअली निकालना है 12 - y। ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखो ये कैपिटल है, ये टाइम है। टाइम का मतलब यहां पे होता है फॉर हाउ मच टाइम द मनी वॉज इन्वेस्टेड। अब आपको पता है इन 1 ईयर वी हैव 12 मंथ्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बी ने 10 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इफ बी इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स, तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ही ज्वाइंड? यू ओनली टेल मी। यू विल से सर 12 - 10, y की वैल्यू 10 हो गई, तो 12 - 10 यानी कि आफ्टर 2 मंथ्स बी ज्वाइंड। अगर 2 महीने बाद ज्वाइन किया तो उसने पैसा 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये चीज आपको समझनी है कि हमको फाइनली जो हमें आंसर चाहिए वो हमको चाहिए 12 - y, बट हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, अब आपको पता है व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो? कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट रेशियो इज कैपिटल इनटू टाइम, सो इट इज 76,000 इनटू 12 इज टू, रेशियो निकालिए ना, इज टू 57,000 इनटू y। और हमको ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है किसके बराबर? 2:1 के बराबर गिवन है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाय, मतलब प्रॉफिट शेयर ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज गिवन टू यू एज 2:1। देखो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ए के शेयर को, 2:1, पहले ए की बात हो रही है, तो 2:1। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। लेकिन उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो द जीरोस विल गेट कैंसिल आउट। नंबर वन now on the table of 19 into 3 is 57, 19 into 4 is 76। फर्दर आप इसको और कैंसिल कर सकते हो, कैसे? 3 into 4 is 12। ओके, so you get 16 upon y is equal to 2:1। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y comes out to be 8। तो it means B invested the money for 8 months, but after how many months he joined? So you will say sir 12 - y, so 12 - 8 which is 4. So B joined after 4 months but he invested the money for 8 months. तो हमसे पूछा है after how many months he joined? So he joined after 4 months. Answer will be option C. Don't make this mistake. A lot of candidates will make this mistake कि वो आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे।
आपसे ये नहीं पूछा कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स ही इन्वेस्टेड द मनी, आपसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ही ज्वाइंड, सो ही ज्वाइंड आफ्टर 4 months. So the correct answer will be option C. I hope I have made myself very clear. I'll discuss guys one more question before concluding this session. I hope you are enjoying the session. So the question is, A and B started a business jointly. A's investment was thrice the investment of B, and the period of his investment was 2 times the period of investment of B. ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं. तो वी हैव 2 people over here, A and B. We have 2 people over here, A and B. अगर मैं मान लू दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ B अगर मैं मान लू I है, तो A की इन्वेस्टमेंट कितनी है? थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B. तो A की इन्वेस्टमेंट हो गई 3I, है ना. ये इन्वेस्टमेंट बोल लो या कैपिटल बोल लो, तो बेसिकली कैपिटल की बात कर रहा हूं पहले मैं. तो अगर B ने I रुपीस इन्वेस्ट करे हैं तो A ने 3 times 3I. और क्या गिवन है? द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि टाइम की बात कर रहे हैं. द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए वॉज 2 times, मतलब ट्वाइस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी. तो अगर बी ने, मान लो बी ने अगर पी मंथ्स के लिए या पी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो ए ने 2p टाइम्स के लिए इन्वेस्ट किया, ट्वाइस. तो यहां से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल सकते हो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको पी नहीं लिखते हैं, चलो इसको मैं टाइम को टी लिख देता हूं, सिंपल रख लेते हैं, ठीक है ना. और ये कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया. प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम. सो 3I इंटू 2t, तो 6IT लिख सकते हो इसको आप, और यहां से आप लिख सकते हो IT ओनली. तो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली यहां से मैं, ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल्स है, तो ये 1IT है, ये 6IT है. ध्यान से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 6:1 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ रहा है. इट मींस अगर कंपनी को, अगर बिजनेस को 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 6 rupees बिलोंग टू ए एंड 1 rupee बिलोंग टू बी. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ बी रिसीव्ड 4000 एज प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन, आपको बी का शेयर गिवन है, तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ध्यान से समझना, यूनिटरी मेथड ही आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो. टोटल प्रॉफिट तो 7 है, ये तो आपको पता चल गया, है ना. बी को अगर 4000 मिलते हैं, तो आपसे पूछा गया है टोटल प्रॉफिट कितना है. अब आप मुझे बताओ, अगर बी को 4000 मिल रहे हैं, तो ए को कितना मिलेगा? आप मुझे बता सकते हैं. तो 1 इंटू 4000 होता है 4000, तो 6 इंटू 4000 कितना होगा? 24000. तो ए को मिलेंगे 24000 रुपए. शेयर ऑफ ए विल बी 24 अगर बी का शेयर 4 है. और टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना हो गया? बिजनेस का कितना हो गया? टोटल 24000 प्लस 4000. So the total profit earned by the business is 28,000, which is option number D. तो गाइस आप देख सकते हो तीनों ही क्वेश्चंस काफी डिफरेंट थे. दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन सम वेरिएबल्स. द प्रीवियस क्वेश्चन वाज आल्सो डिफरेंट, कि वहां पे आपको मंथ्स की वैल्यू निकालनी थी. देखो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. टोटल प्रॉफिट निकालने को भी दिया जा सकता है, टाइम निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं, कैपिटल निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं. तो एनी वैल्यू कैन बी मिसिंग. ओके, बी श्योर ऑफ दैट. So I hope guys you have got a good idea कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Apart from that, as I told you in the beginning of this video, कि थोड़ा सा मैं आपको कोर्स भी दिखा देता हूं, how our course looks like. So if you visit the website lawdigest.in, तो आपको वहां पर इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे. लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, लीगल करियर काउंसलिंग, बहुत सारे लीगल नोटिस कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजों के आपको कोर्सेज मिलेंगे. तो यहाँ स्पेसिफिकली मैं आपको DU LLB BHU LLB यानी कि CUT PG जो है वो वाला कोर्स मैं आपको दिखा देता हूं. तो करंटली इट इज अवेलेबल एट अ 26% डिस्काउंट फॉर 16,602 रुपीज. और इस कोर्स के अंदर आपको जो भी सिलेबस है सब कुछ बहुत डिटेल में मिलता है, जैसे कि स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, देन करंट अफेयर्स, जीके आपकी करंट अफेयर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, ऑनलाइन क्विजेस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो ये बेसिक चीजें आपको सारी, जो भी सिलेबस है आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है. और जैसे कि अगर मैं एक स्पेसिफिक कोर्स आपको ओपन करके दिखाऊं, ये सब कोर्सेज हैं, ठीक है. इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं. लाइक लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको LR कैसे कवर करना है. फिर सारे चैप्टर्स हैं इन, तो बेसिकली इसी सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल सीक्वेंस गिवन है, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना होता है. तो सब कुछ आपको यहाँ वेबसाइट पे बहुत डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा. सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव. अगर सेशन पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल
एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना वीडियो के नीचे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है गाइस, तो तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत पास है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।